हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्या है कंसेप्ट ऑफ मोल। सो वन मोल, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, is nothing but the value equal to 6.022 into 10 raised to 23. So this number of entities, I mean particles, maybe atom, maybe ion, maybe molecule, it is known as one mole. It is exactly equal to the number of atoms presenting 12 gram of carbon C12 isotope. So in the last lecture also I have given you the idea regarding one mole. So accordingly, if we take here 1 mole of oxygen molecules, इसका मतलब पता है क्या होगा? Means 6.022 into 10 raised to 23. आगे का जो बड़ा वैल्यू दिया है वो सब याद रखने की जरूरत नहीं आपको, आपने इतना भी याद रखा तो चलेगा। 6.022 into 10 raised to 23 molecules of oxygen, right? Then suppose 1 mole of H2O molecules is equal to here 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water. So in this way 1 mole, अगर हमने लिया कोई भी आयन, 1 mole of suppose Cl minus ions, you know it's nothing but anion, is equal to 6.022 into 10 raised to 23 ions of Cl minus. So this is that this is the concept of 1 mole. 1 mole is the number exactly equal to 6.022 into 10 raised to 23, and this number is also known as Avogadro's number. It is also having symbol Na. It's the name of scientist Amerigo Avogadro. तो ये जो नंबर है, which number? That 6.022 into 10 raised to 23, इसको हम लोग बोलेंगे Avogadro's number. Understand? Like this is the concept of 1 mole. कुछ भी ले लो, if you see 1 mole of markers means this much number of markers. So it is just like the quantity, like 1 dozen is equal to 12 number of things. Similarly, this is also a number here. Remember, it is known as Avogadro's number, right? Now, remember, mole is nothing but one of the fundamental unit. हे काय असतं? आपण जे बघते ना 7, there are 7 fundamental units, out of which mole is also the fundamental unit of, yes, amount of substance. Amount of substance का क्या होता है? यूनिट होता है mole. Remember, mole is nothing but the name of unit, and mole is symbol for the unit. Understand? So this is nothing but the concept of mole. तो ये जो मोल है, ये मोल का सिंबल है, और मोल MOLE is nothing but the name of the unit. Okay? So you must be you must know about this. Now the next concept is molar mass. Yes, अभी तक हमने देखा है what is meant by atomic mass, then molecular mass. After that, we have seen formula mass as well as
एवरेज एटॉमिक मास। तो ये इनके बाद अभी हमें देखना है क्या होता है मोलर मास। सो द मास ऑफ 1 mole of the substance in grams is called molar mass. The mass of 1 mole of the substance in grams is called as molar mass. For example, take the example of NaOH. अगर हमें निकालना है कि इसका क्या आएगा मोलर मास, तो यू नो दैट इन 1 molecule of NaOH, yes, average atomic mass of सोडियम, एक ही है इसलिए यहां पे आएगा into 1 plus 1 into average atomic mass of oxygen plus 1 into, यहां पे H भी एक ही है इसलिए average atomic mass of hydrogen. So सोडियम का होता है 23 डाल्टन, ऑक्सीजन का होता है 16, yes, no, unified mass, you can say Dalton or AMU also, and then H is having 1. If you take it together, it's nothing but 40. ये है unified mass. But in case of the molar mass, for 1 mole we have to write here 40 grams per mole as molar mass. अगर आप देखोगे यहाँ पे 40 आएगा यूनिफाइड, ये क्या होगा, इट्स नथिंग बट द एटॉमिक मास, यू नो, या फिर सॉरी इट्स नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिक मास नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा मॉलिक्यूलर मास. बट हियर दिस इज नथिंग बट नोन एज मोलर मास. इसका मतलब ये है कि जब कभी हम लोग लिखेंगे मोलर मास, तो मोलर मास हमेशा हम ग्राम्स पर मोल में लिखेंगे, बिकॉज दिस 40 grams per mole is nothing but the molar mass of NaOH. Similarly, if you take here other example, like suppose आपकी बुक में क्या एग्जांपल दिया है यहाँ पे, yes, molar mass of ऑक्सीजन एटम्स. तो देखिए एक्चुअली मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू, यस, एवोगाड्रो नंबर का जो नंबर है यहां पे आएगा, यू नो दैट 6.022 इंटू 10 रेज़ टू आएगा यहां पे 23 इंटू आएगा यहां पे 60 यूनिफाइड, राइट. एंड इफ यू सॉल्व दिस, its value will be equal to, still we have to multiply here by the number, yes, 1.66056, 1.66056 into 10 raised to 24, ठीक है ना, ग्राम्स. तो ये अगर हमने यहां पे दिया तो इसका वैल्यू वही आएगा 16 ग्राम्स पर मोल. देखिए मोलर मास और ये जो होता है मोलर मास, इसमें ये ऐसे भी आएगा, बट ओनली सिंपल थिंग टू रिमेंबर, दे हैव, अभी इतने सब वैल्यूज आप लोग कैसे लर्न करोगे, द मैटर इज, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर दैट क्या होता है मोलर मास. अभी 40 अगर हमने निकाला ना, तो वही इसके सामने अगर हमने लिख दिया ग्राम्स पर मोल, तो ये हो जाएगा मोलर मास. रिमेंबर वन थिंग, व्हेन द molar mass of the substance is expressed in grams, it is known as gram
molar mass or simply 1 mole of that substance. When molar mass is expressed in gram, for example NaOH का क्या आया था molar mass, ये 40, अगर हमने इसको लिख दिया 40 ग्राम्स तो ये हो गया ग्राम मोलर मास और सिंपली 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. इसका मतलब 40 ग्राम वेट इज नथिंग बट द 1 मोल ऑफ NaOH. 20 ग्राम अगर हमने लिया तो ये हो जाएगा उसका हाफ मोल. आई एम टॉकिंग अबाउट NaOH ओनली. अगर हमने लिया 10 ग्राम तो क्या हो जाएगा, 10 ग्राम मतलब 40 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 10 ग्राम मतलब कितना हो गया, यस जस्ट ओनली 0.25 और यू हैव टू से हियर यस कितना आएगा, 10 ग्राम मतलब 1/4, राइट. तो ये मतलब आएगा 0.25 मोल्स. सो इन दिस वे मोल concept we have to use. Molar mass when expressed in grams is known as gram molar mass or simply 1 mole of that substance. You will take some more examples. Don't worry. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें देखना है. तो वापस हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. तब तक के लिए आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पे इन वैल्यूज के बारे में टेंशन मत लेना, ठीक है ना. ये सब वैल्यू आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे. आखिर में आपको मालूम चलेगा कि कैसे इसको मतलब याद रखने का है. जो भी आएगा यहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है एटॉमिक मास एंड हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. तो उसी को अगर हमने यहाँ पे ग्राम्स पर मोल लिखा तो हो जाएगा यहाँ पे मोलर मास. ओके, याद रखिएगा जब भी कभी आपको प्रॉब्लम में भी मोलर मास अगर दिया है तो वो हमेशा देंगे ग्राम्स पर मोल मध्ये, ठीक आहे. मी हे पूर्ण नोट डाऊन करा. आणि एक सांगतो तुम्हाला, तुमचं अजून लॉग टॉपिक बाकी असेल ना लॉगरिथम, तो वो अगर आपका बाकी है तो तब तक हम लोग न्यूमेरिकल को स्टॉप करेंगे, मतलब नहीं लेंगे. या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग कुछ सम ऑफ द एग्जांपल्स आई विल सॉल्व ऑन द बोर्ड and are based on the log book. लेकिन आपके पास लॉग बुक है क्या, ठीक है, देखते हैं. चलो पहले इतना तो डाउन कर लीजिए. Now see, there are two notes given on the board here. The first one, the molar mass of any element in grams is numerically equal to atomic mass of that element in U. I mean unified mass, or you can say AMU or Dalton. Molar mass of any substance existing in polyatomic molecule. Polyatomic, I told you, molecules may be monoatomic, may be diatomic, triatomic, tetraatomic, so they are called as polyatomic. तो उनका जो भी रहेगा मोलर मास, अगर मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस एक्जिस्टिंग एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये हो गए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. जो मोनोएटॉमिक नहीं है वो है पॉलीएटॉमिक. तो चाहे वो डायटॉमिक हो या फिर ट्राइएटॉमिक हो, कुछ भी हो, सो ऑल दे आर नोन एज अ पॉलीएटॉमिक. पॉली मतलब मेनी एटम्स, यू नो दैट. सो अभी यहां पे देखिए ऑक्सीजन का आपको पता है क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास. ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, आएगा यहाँ पे 32. ये आएगा यूनिफाइड मास. H2O का क्या आता है, ऑक्सीजन का होता है 16, H का होता है 1 इंटू 2, हो जाएगा टोटल हो जाएगा ये 18 यूनिफाइड. NaCl का क्या आता है, सोडियम का होता है 23 एंड क्लोरीन का होता है 35.5. कितना हुआ है यहाँ पे, 58.5, राइट. 58.5 हो जाएगा ये यहाँ पे. ये है यूनिफाइड मास और AMU. मोलर मास जो है अभी हमको लिखने का है तो इसका आएगा 32 ग्राम्स पर मोल, 18 ग्राम्स पर मोल, 58.5 ग्राम्स पर मोल. हमको पता है ना NaCl का हमने यहाँ पे क्या लिया है, इट्स एक्चुअली फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास क्या है पता है ना आपको, सम ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स दे एग्जिस्ट इन द 3 dimensional forms. So there are many cations and anions are present.
ऐसे में हम क्या करते हैं, वी हैव टू टेक हियर फॉर्मूला मास, अंडरस्टैंड। सो फॉर्मूला मास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा, इसका आएगा इनिशियल का है वैल्यू 58.5 है। सो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू नोट डाउन प्रॉपर्ली, आए समझ में। सो एज आई टोल्ड यू, वही बात मैंने आपको बताई थी कुछ देर पहले कि whenever mass of the substance, I mean molecular mass, when it is expressed in gram, it is known as a gram molar mass, or simply 1 mole of that substance. Now see here the numerical is also given. Let's see now. Calculate the number of moles and molecules of urea present in 5.6 gram of urea. Now ये दिया है प्रॉब्लम, इट्स अ सॉल्व प्रॉब्लम, बट दिस विल गिव यू आइडिया हाउ टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स. लेट्स सी नाउ. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया. तो यहां पर यूरिया जो है इसका स्ट्रक्चर पहले आपको मालूम होना चाहिए. दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया. यस, ये है यूरिया का स्ट्रक्चर, जहां पे ये है कार्बोनिल कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप. ये है कार्बोनिल कार्बन, ये है कार्बोनिल ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये है NH2, इधर भी है NH2. वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2, दैट ऑफ N इज 3. 3 कैसे, ये देखो, ये यहाँ पे 1 और ये 2. सो इन दिस वे. नाउ इफ यू सी द फॉर्मूला हियर, CH4NO आएगा, राइट. एक C है, देखिए यहाँ पे ये 2 हो गए H और ये 2H, 4 हो गए. देन 1 N यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि यहाँ का ये N और यहाँ का ये N. ठीक है. इसका अगर आप देखोगे क्या आएगा इसका, यस, मोलर मास क्या आएगा बताइए. सो यू नो दैट एवरेज atomic mass of carbon plus 4 in bracket average atomic mass of hydrogen plus 2 average atomic mass of SN, क्योंकि यहाँ पे 2 इसलिए हमने यहाँ पे 2 से किया है मल्टीप्लाई. सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन का वैल्यू होता है 12, इसका होता है कितना 4, 1, यू नो, एक्चुअली 4 इंटू इसका होता है वैल्यू 1. देन प्लस N का क्या होता है वैल्यू, N का वैल्यू होता है यहाँ पे यस 14. सिमिलरली कितने ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पे, उसका है यूनिफाइड ऑक्सीजन का कितना होता है 16. ये आना चाहिए यस 60 यूनिफाइड मास. अभी ये जो हमने निकाला है, अब इस वैल्यू इज नथिंग बट 60, और ये आया है यूनिफाइड में. अगर आपको लिखना है इसका मोलर मास, देयरफॉर मोलर मास इज इक्वल टू क्या आएगा 60 ग्राम्स पर मोल. इतना पहले आप लिख लीजिए.
तो यहाँ पे हमने लिखा है मोलर मास। जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल है यहाँ पे एन, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। सो आई विल राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए याद रखिएगा हम लोग हमेशा सिंबल लेंगे स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए। इसका एक फॉर्मूला मैं बोलता हूं आपको जो आपको याद रखने का है। नाउ सी दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो 12th में आपको ये काम आएगा, समजलं? म्हणजे काही टॉपिक असे आहेत तुमच्या 11th टेक्स्टबुक मधले जवळपास सीईटीचा पेपर जो असं काय किंवा कुठला तुम्ही घ्या, जेईचा घ्या, नीटचा घ्या, यू नो दॅट आउट ऑफ 50 मार्क्स इन केस ऑफ सीईटी आय एम टेलिंग यू 10 मार्कांचा तुमचा सिलेबस असेल हा फ्रॉम 11 सायन्स. ठीक आहे, त्याच्यामुळे एव्हरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, सो टेक इट सीरियसली. सो 50 मार्क के पेपर में 10 मार्क का जो आपका रहेगा मतलब सिलेबस ये रहेगा 11 का. 40 मार्क्स आर देयर फॉर द 12th. इसीलिए ये हमको लेना है, मतलब समझना होगा. और ऐसा ही नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं 12th में भी जो कि बेस है 11 के ऊपर. अगर आपका 11 का अच्छा है बेस, अगर आपने आगे से बेसिक पढ़ लिया तो उसका फायदा आपको 12th में जरूर होगा, उतना जल्दी आपको समझ में आएगा. अंडरस्टैंड? सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बेस अच्छा करना पड़ेगा. ओके, अभी यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यस, मास ऑफ द सब्सटेंस जो कि होता है जनरली इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास. अभी हमने देखा वो होता है ग्राम्स पर मोल में, तो ऊपर होगा ग्राम्स, नीचे होगा ग्राम्स पर मोल. ओके, नाउ मास ऑफ द सब्सटेंस क्या दिया है आपको, दिया है न्यूमेरिकल में 5.6 ग्राम्स. सो हियर वैल्यू इज 5.6 ग्राम्स. मोलर मास क्या है, वो है 60 ग्राम्स पर मोल. अभी देखिए ये जो दिया है बोर्ड पे लिखा है 5.6 डिवाइडेड बाय 60. ऑब्वियसली यहां पे ग्राम तो हो जाएगा कट, अभी यूनिट आएगा उसका मोल में. हाउ टू सॉल्व दिस? यस, अगर ऐसे है certain calculations we have to solve by the help of log book. तो आपको इसके लिए लॉग बुक सीखना होगा. अगर आपका लॉग बुक मतलब नहीं हुआ, मतलब टॉपिक अगर नहीं हुआ है मैथ्स में, तो डोंट वरी, वी विल टेक हियर हाउ टू सॉल्व सच अ काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स बाय यूजिंग लॉग बुक. तो देखिए पहली बात तो ये है, अगर हमें सॉल्व करना है इसको लॉग बुक के यूज से, तो लॉग ऑफ 5.6 माइनस लॉग ऑफ 60. हियर लॉग लेते वक्त आपको हमेशा ध्यान में रखना है एक बात कि लॉग में होता है दो पार्ट. एक पार्ट होता है मैंटिसा पार्ट, एक पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट. नाउ सी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो डेसिमल पॉइंट के इस तरफ एक ही डिजिट है और वो है 5. इसमें से आपको मतलब करना पड़ेगा माइनस. सो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड -1. यहां पे एक ही डिजिट है, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0. सी फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कुछ नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पे पॉइंट है 1 2 3.45, 1 2.345, 1.2345 and 0.12345, 0.01235. ऐसे अगर नंबर्स है और अगर आपको देखना है इनका लॉग, ठीक है, तो यहां पे आपको देखना है
कि 1 2 3 4 5 आई मीन 5 नंबर्स आर देयर, आई मीन 5 आर द डिजिट्स। इसमें से आपको एक माइनस करना होगा। देखिए अगर ये वैल्यू अगर यहां पे ऐसा होता ना 8 4 2 3 6, यहां पे भी कितने आएंगे, यहां पे भी 5 है नंबर ऑफ डिजिट्स। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। आई टोल्ड यू नंबर ऑफ डिजिट्स -1, दैट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक। तो 1 2 3 4 5 अगर हम यहां पे करते हैं तो यहां पे 5 -1 नंबर ऑफ डिजिट्स -1 क्या हो जाएगा इधर 4। सो कैरेक्टरिस्टिक हियर, यहां पे आएगी कैरेक्टरिस्टिक 4। यहां पे है 4 डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4, उसमें से हमने 1 माइनस किया तो हो जाएगा यहां पे कितने 3, यहां पे 3 डिजिट्स, ठीक है ना 1 2 3, उसमें से हमने 1 माइनस किया तो हो जाएगा 2, यहां पे 2 है, अगर हमने किया -1 तो हो जाएगा 1, इधर 1 है डिजिट तो हो जाएगा 1 - 1 इज 0। यहां पे क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ 0 जितने 0 उतने रहेंगे माइनस पे आएगा। यहां पे आएगा बार 1, यहां पे बार मतलब माइनस, यहां पे है बार 2। चलो और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज 4 2 4 7 6, 4 2 4 7.6, 4 2 4.76, 42.476, 4.2476. Can you tell me what will be the characteristic here? Yes, I told you number of digits -1. काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 -1 कितने हो जाएंगे 4, सो 4 पॉइंट। यहां पे कितने 4 है 1 2 3 4, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4 -1 हो जाएंगे यहां पे 3, यहां पे 3 डिजिट्स है -1 हो जाएंगे 2, यहां पे 2 डिजिट्स है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 2 है डिजिट्स -1 तो हो जाएगा यहां पे 1, यहां पे कितना है ओनली 1 डिजिट है, कौन सा है वो 4, -1 मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स -1, ये हो जाएगा इधर 1 -1 हो जाएगा फिर 0। तो दिस इज नथिंग बट द नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। अंडरस्टैंड? आपके पास लॉग बुक है, जस्ट ट्राई इट नाउ। तो उस हिसाब से अगर हमें लेना है लॉग ऑफ 5.6 तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में एक ही है डिजिट और कौन सा है 5 है। डिजिट चाहे कौन सा भी क्यों ना हो, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 भी होता 3 भी होता कुछ भी होता तो नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होता है डिजिट्स ओनली 1। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है एक डिजिट 1 - 1 0, सो कैरेक्टरिस्टिक इज 0 हियर। लॉग अगर आप देखोगे, मेरे पास तो लॉग बुक अभी नहीं है फिलहाल, देखो मैं यहां से आपको बोलता हूं, देखिए ये है लॉगरिथम का टेबल है, यहां पे आपको देखना है, देखिए 56 का आएगा 0 में। अगर आपको यहां पे इनका देखना होता किसी का भी, इनमें से अगर आपने किसी का भी लॉग देखा तो आपको देखना पड़ेगा 12 का 3 में लॉग, 12 का 3 में अगर आप देखते हो तो 12 का 3 में यहां पे दिख रहा है मुझे, आपके पास अगर लॉग बुक है तो देखिए इसमें 12 का 3 में आ रहा है, यस वैल्यू है उसका, यस 0899। 12 का 3 में आ रहा है 0899, डिफरेंस है 5 का, क्योंकि देखिए नहीं कितना है डिफरेंस है 4 का। 12 का आपने देखा 3 में,
आगे 4। लॉगरिथम देखते वक्त हमेशा ध्यान रखने का, लॉग में हमें बस पहले 4 ही डिजिट्स चाहिए, ओनली फर्स्ट 4 डिजिट्स। मतलब आप देखोगे 12 का 3 में 4 का मीन डिफरेंस आप ऐड करोगे। ये है, आगे देखोगे ना तो यहां पे दिया होता है मीन डिफरेंस। अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 12 का 3 में आ रहा है 0899, मीन डिफरेंस आ रहा है 19, करें कितने का है मीन डिफरेंस 4 का ना, ये आ रहा है 14। सो 0899 मीन डिफरेंस दिखा रहा है मुझे 12 का 4 में, तो ये आ रहा है 14, राइट। सो 9 + 4, तो देखिए यहां मेरा आंसर आएगा 4.0913। अगर इसका भी लिखना है तो 12 का देखोगे 3 में 4 का डिफरेंस ऐड करोगे, वही आएगा। इसका भी कैसे करोगे, 12 का देखोगे 3 में 4 का मीन डिफरेंस आप ऐड करोगे, सेम ही है सबका, सिर्फ चेंज किसमें है, चेंज इज देयर इन ओनली कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। अभी मुझे देखने का है 56, उसके आगे कुछ है नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा 56 का 0 में। ये आ रहा है वैल्यू 7482, 7482 ये आ रहा है वैल्यू। 56 के आगे कुछ नहीं था तो हमने यहां पे क्या लिया है 0, ठीक है। माइनस व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक हियर, 60 इज द डिजिट, 60.0 गया ना वो, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है 2 डिजिट्स, उसमें से हमने 1 माइनस किया तो हो जाएगा 1। सो 1 इज कैरेक्टरिस्टिक हियर। 60 का देखो क्या आता है 0 में, 7782 आ रहा है, चेक करो अभी 7782। अभी देखिए यहां पे ये अभी मैं करता हूं, 0.7482, 1.7782, 2 minus 2 is 0, 0, 14 minus 7, yes, is 7, 6, and now here 16 minus 7, क्या आएगा 9, क्या बचा यहां पे। अभी देखो यहां पे जैसे हमने लिया था यहाँ पे 6 था, तो यहां पे हमको एक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि +1, यहां तो बस 0 बचा है, ऐसे में आपको करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। सो हियर वी हैव टू ऐड +1 क्योंकि हम यहां से ले सकते ना, दैट्स व्हाई। सो 1 + 1 is 2, सो 0 - 2 is -2, मतलब -2। अभी आपको देखना पड़ेगा इसका एंटीलॉग 0.97 का, देखो जो आ रहा है यहां पे सब्सट्रैक्शन, वापस चाहिए तो मैं एक बार आपको बोल दो कैसे आया वो, ठीक है। सो देखो 0.7482, 1.7782, नाउ वी हैव टू डू द सब्सट्रैक्शन। 2 minus 2 is 0, 8 minus 8 is 0, 14 minus 7 is 7. Here, कितने बचे 6, so 16 minus 7 is 9. इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया +1, so 0 minus 2 is 2. अभी आपको देखने का है 0.97 का एंटीलॉग। अगर आप देखोगे
प्रॉपरली तो आपको दिखाई देगा जितने भी एंटीलॉग्स दिए हैं ये सब के सब एंटीलॉग्स पॉइंट के बाद में दिए, तो आपको देखना है पॉइंट 97 का जीरो में वैल्यू आ रहा है 9333, वैल्यू इज 9333। 97 का जीरो में देखा, जीरो का डिफरेंस कुछ है नहीं, अगर यहां पे कुछ होता डिजिट तो इसका भी हमें मीन डिफरेंस वहां पे शायद ऐड करना पड़ता। ओके, अभी हमने यहां पे लिया है 9333, कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया है यहां पे -2, -2 मतलब बार 2, मतलब एक काम करेंगे, हमेशा हमें देना है पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट, यहां पे दिया हमने, और जो भी यहां का है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट यहां पे -2 है, इसको हम भेजेंगे 10 की पावर पे, 10 रेज़ टू -2। अरे हा वर्ड नाही आहे, खूप इझी आहे बघा, इथे किती आहे -2 आहे, जर इथं समजा असतं 2 फक्त तर इथं आपण लिहिलं असतं 10 रेज़ टू 2, अगर यहां पे होता 3 तो हम यहां पे लिखते 10 रेज़ टू 3, लेकिन अगर यहां पे -2 है तो मैंने लिखा 10 रेज़ टू -2। आया समझ में? सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर एग्जांपल्स, इतना डिफिकल्ट नहीं है लॉग। ओके, एज आई टोल्ड यू, अगर मैथ्स में नहीं होता है तो मैं लेक्चर ले लूंगा आपका स्पेशली ऑन द टॉपिक लॉगरिथम। ओके, तो अभी यहां पे लिया हमने -2, अगर सोचो यहां पे होता 1 तो क्या होता, यहां पे होता 10 रेज़ टू 1, मतलब जो है वही, ठीक है। अगर आप देखोगे 9.333, ये 10 रेज़ टू -2 अगर नीचे आप लाते हैं तो हो जाएगा 10 रेज़ टू +2, मतलब 9.333 डिवाइड बाय 100, और ये आएगा 0.0933, शायद वही दिया है, यस करेक्ट, यही दिया है आंसर आपके टेक्स्ट बुक में भी। ये अभी निकले हैं नंबर ऑफ मोल्स, हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, यस, n into Avogadro number, that is 6.022 into 10 raised to 23, so 0.0933 into 6.022 into 10 raised to 23। इसका अगर आप एक काम कीजिए ना, इसको आप लोग ट्राई करो लॉगरिथम बुक से, ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर आना चाहिए, और वो आएगा, यस, इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन यू गेट द आंसर 0.5618, यस, 0.5618 into 10 रेज़ टू आएगा 23। लेकिन ध्यान में रखिएगा, हमेशा हमें जब भी आंसर लिखना होता है वी हैव टू राइट इन द फॉर्म, यहां पे ये जो है डेसिमल हम यहां पे करते हैं शिफ्ट, तो वो हो जाएगा 5.618 into 10 रेज़ टू, अभी हमने यहां पे इसको शिफ्ट किया है, तो जो यहां पे जो पावर है ये क्या हो जाएगा, द पावर विल बी, यस, पावर विल डिक्रीज। इन केस अगर होता है यहां पे माइनस तो अलग होता, यहां पे आएगा 22, चेक करो, यही दिया है आंसर आपके यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द न्यूमेरिक, और लेंगे हम, डोंट वरी, ये मैं चाहता हूं कि दिस आपको आइडिया आ जाए कि कैसे यूज करना है लॉग बुक को। Yesterday one of the student asked me how to solve the numericals which are quite difficult numericals, तो ऐसे हम यूज करेंगे लॉग बुक का, और लॉग बुक आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, यू कैन टेक रैंडमली
कोई भी नंबर ले लो, मुझे लॉगरिथम इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि मैं आपका लेक्चर ले लूं। फिर भी आप लोग, मैं वेट करता हूं, मैं बोलता हूं अभी मैडम से बोलूंगा शायद कि ये टॉपिक हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, नोट डाउन दिस वन। आया समझ में कैसे किया है हमने लॉग बुक का यूज? कोई बात नहीं, मैं वापस आपको समझाऊंगा। ओके, डोंट वरी। अभी जो नेक्स्ट दिया है टर्म वो है मोल्स एंड द गैसेस, जो आपको आपकी बुक में है। लास्ट टॉपिक है थ्योरी का हमारा, मोल्स एंड गैसेस। सी, इन केस ऑफ गैसेस it will be convenient to measure the volume. That's why Avogadro, he deduced actually the thing, one law he given that the molar volume or the volume of 1 mole of the substance and STP. Now the meaning of the term STP is nothing but standard temperature and pressure। जहां पे टेम्परेचर हमेशा हम लोग लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, इट्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर टेकन एज अ स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब हो जाएगा 273 केल्विन। प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फियर। Avogadro deduced that volume of any gas and STP is equal to 22.4 decimeter cube। Volume of any gas at STP is equal to 22.4 decimeter cube। STP मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फियर। एंड जो होगा टेम्परेचर, ये होता है 273 Kelvin। Nowadays, pressure is changed by the IUPAC convention। I mean the value of pressure is taken as 1 bar। एटमॉस्फियर और बार में डिफरेंस क्या है, ये आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, समथिंग यू हैव टू डू, आप जस्ट देखो कि मतलब सर्च करो और मुझे बताओ कि 1 बार में और 1 एटमॉस्फेयर में क्या है डिफरेंस। सो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलार वॉल्यूम। सो 22.4 डेसीमीटर क्यूब मतलब होगा 22.4 लीटर्स। हम यहां पे ये भी इधर ले सकते हैं 22.4 लीटर्स। अंडरस्टैंड? सो इस तरीके से जैसे यहां पे बताया है, 1 mole of any gas occupies a volume of, I will write here, 1 mole of any gas occupies volume, how much? Volume of 22.4 decimeter cube at STP। So और एक फॉर्मूला भी हमको याद करना पड़ेगा। यस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल टू, ये होना चाहिए था इधर n इंटू 22.4 एंड दिस विल बिकम द फॉर्मूला। याद रखिएगा इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। अभी ये फॉर्मूला है, मैंने क्या बोला आपको कि जितने भी रहेंगे
फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस अमोनिया NH3 की हम बात करेंगे। आपको पता है क्या है इसका मोलर मास है, N का आएगा 14, H का आता है 1 into 3 हो जाएगा 17 ग्राम्स पर मोल। ये हो गया मोलर मास ऑफ अमोनिया। तो 17 ग्राम्स पर मोल ये हो गया उसका 1 मोल, और 1 मोल ऑफ अमोनिया का वॉल्यूम होना चाहिए 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। As I told you, temperature must be equal to 0 degree Celsius and pressure is equal to 1 atmosphere, but nowadays it's a 1 bar। और मैंने आपको एक काम दिया है कि वो बार और एटमॉस्फेयर में क्या डिफरेंस है आप मुझे बताओगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आज हम यहाँ पे रुकते हैं, कल हम वापस न्यूमेरिकल्स का हमारा सेक्शन शुरू करेंगे और मैं आपके कुछ मतलब आपको कुछ ट्रिक दूंगा हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बाय यूजिंग टॉप। ओके, टिल दैट टाइम जस्ट स्टे एट होम, टेक केयर, और इसको अच्छे से नोट डाउन की ऑन दिस टॉपिक आल्सो। जो न्यूमेरिकल दिए हैं सॉल्व अनसॉल्व फॉर्म में, ये आप घर पे ट्राई करके देख लो एक बार, ठीक है। टिल दैट टाइम गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।